Hello and welcome back everyone to chemistry classes. So continuing with chemical thermodynamics, in last videos we have seen that we calculated the total entropy of the system and the surrounding for irreversible, reversible, then isothermal and adiabatic processes. And in last video itself, when we were calculating these things, we got to know that this is a very complicated method. It was easier for us to calculate the entropy for the reversible process, but it was very difficult for us to calculate entropy for an irreversible process, because as per definition entropy is not defined for an irreversible process. So since the criteria of spontaneity says that the entropy has to increase, so it was we had to calculate this. But last video में अगर आप confused हुए हैं, तो that was the sole motive of that video, that you should get confused, and we should now search for some other term instead of entropy, where we can judge about the spontaneity of a process, कि वो process natural है या नहीं. वो हमको entropy से नहीं, किसी और अगर पैरामीटर से पता चले तो हमारे लिए अच्छा है. तो वही हम क्राइटेरियाज यहाँ देखेंगे कि what all are the other criteria of spontaneity which can be used, and what is the major shift which we make from entropy to some other state function which is more helpful to us. तो इस वीडियो में हम वही चीज़ देखेंगे. तो सो कंटिन्यूइंग विद द क्लॉजियस इनइक्वालिटी. क्लॉजियस इनइक्वालिटी जो है वो कहती है ds इज ग्रेटर देन और इक्वल टू dq by t. So when the reversible heat is being transferred to the system, so ds is equal to dq reversible by t, and dq reversible is always greater than dq irreversible, which tells us that ds is greater than dq irreversible by t. लास्ट की 2-3 वीडियो में हम यही चीज़ डिस्कस कर रहे थे. तो दिस इज द स्टैंडर्ड स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया विच वी आर हैविंग. ठीक है, कि ds शुड इंक्रीज. ठीक है, अब यहाँ से हम कुछ और क्राइटेरियाज निकालेंगे. तो इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं. TdS माइनस dq is greater than or equal to 0. That is what we get. Now I use the first law of thermodynamics, और फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स से मैं dq को रिप्लेस करूँगा एज du माइनस dw. ठीक है, अभी गलती एक चीज़ ये कर रहा हूँ कि du और dw को मैं d से ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. वैसे तो ऐसे रिप्रेजेंट करना चाहिए, बट इफ़ आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग इट लाइक दिस इन द रेस्ट ऑफ द वीडियोज़, प्लीज़ कीप इन टू माइंड दैट दिस इज़ एक्सेप्टेबल नाउ, क्योंकि वो एक ऐसी टर्म है कि अब एक्सेप्ट हो गई है. बट दिस इज समथिंग विच यू नीड टू फोकस ऑन, दैट we should not exactly, to be very scientific, we should not represent du and dw by the same differential. Okay, plus dw आएगा और dw is minus pdv. Okay, now let us make some assumptions into this. Let us make an assumption that internal energy is constant and the volume change is 0. So what's happening, we are making internal energy and volume constant. So what we get from this is TdS is greater than or equal to 0 at constant u comma v. So यहाँ से क्राइटेरिया निकल के आता है. क्या क्राइटेरिया निकल के आएगा कि हमारे पास जो है कि एंट्रोपी ds एट कॉन्स्टेंट u और v शुड बी ग्रेटर देन 0. सो अगर कोई प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होना है तो उसकी एंट्रोपी एट कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी एंड कांस्टेंट वॉल्यूम शुड इंक्रीज. सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग. एंड सिमिलर अकाउंट में सपोजिटली वी हैड टू कैलकुलेट दैट व्हाट शुड बी द स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया इफ ds एट कांस्टेंट h, p. अगर h लेंगे तो h के साथ क्या हो जाएगा, वॉल्यूम की जगह हम प्रेशर कांस्टेंट करेंगे. तो इसके करस्पॉन्डिंगली सिमिलर इक्वेशन हमें ये मिलती है, तो वो हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं. कैसे, यही इसी से कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, क्या करना है हमें dq को इंस्टेड ऑफ du वी हैव टू रिप्रेजेंट dq इन टर्म्स ऑफ dh. तो dh के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा, चलो देखते हैं. du इज इक्वल टू dq minus pdv, and we know that h is equal to u plus pv. तो dh will be du plus pdv plus vdp. तो du को अगर मैं लिखूंगा तो du आ जाएगा dh माइनस pdv
माइनस वी डी पी माइनस पी डी वी। तो पी डी वी तो कट गया, तो डी क्यू विल बी डी एच माइनस वी डी पी। तो यहाँ पर फर्दर सॉल्व करते हैं इसको। तो सॉल्व करने से क्या हो रहा है, हमारा आ रहा है टी डी एस माइनस डी एच माइनस वी डी पी। ओके, अब हम यहाँ पर एक चीज़ लेते हैं कि हम लेंगे एच कांस्टेंट और प्रेशर कांस्टेंट, तो तब ये टर्म तो ज़ीरो हो जाएगी और फिर हमें मिलेगा डी एस, सिमिलर मिलेगा कि डी एस एट कांस्टेंट एच कॉमा पी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। सो दिस इज अवर अनदर क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी। तो ये मिल गया, केवल क्या करना था, u की जगह h करना था और v की जगह p करना था, और वो डिराइव भी हो रहा है। बहुत सिंपल है, पर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है स्पॉन्टेनिटी का, ठीक है। और ये हम पढ़ते भी हैं कि हमारी जो इंटरनल एनर्जी बोल रहा हूँ, एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज होनी चाहिए। ओके, नाउ लेट अस मूव टू सम अनकन्वेंशनल अनकन्वेंशनल स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरियाज, ठीक है। ये तो कन्वेंशनल है कि एंट्रोपी बढ़नी चाहिए। अब देखिए अनकन्वेंशनल में कैसे जाएंगे, वही हमारे पास बेसिक इक्वेशन वही है, उसी को यूज़ करके हम सब कुछ अपना डिराइव करेंगे, ठीक है। वही हमारी गॉड इक्वेशन है, टी डी एस माइनस डी क्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। तो अभी डी यू की फॉर्म में लिखो इसको, तो क्या आएगा, माइनस डी यू माइनस डी डब्ल्यू। तो ये आएगा टी डी एस माइनस डी यू माइनस पी डी वी। ओके, क्योंकि डी डब्ल्यू पॉजिटिव में हो जाएगा और फिर माइनस डी वी हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इंस्टेड ऑफ डी एस निकालें, हम यहाँ क्या करेंगे, हमको डी यू निकालते हैं, ठीक है। डी यू में चेंजेस क्या आने चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एंट्रोपी को कांस्टेंट रखना पड़ेगा और वॉल्यूम को रखना पड़ेगा कांस्टेंट, ठीक है। एंट्रोपी और वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा तब क्या आएगा, हमारे पास जो क्राइटेरिया बचता है वो होता है डी यू शुड बी ग्रेटर देन माइनस डी यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, सो डी यू शुड बी लेस देन इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमें मिलेगा। तो व्हाट वी आर गेटिंग अलॉन्ग विद दिस, वी आर गेटिंग इज दैट change in internal energy at constant entropy and volume should decrease for a process to be spontaneous, ठीक है। अगर इक्वल है तब तो वो इक्विलिब्रियम में है प्रोसेस, और अगर लेस देन है, मतलब अगर इंटरनल एनर्जी कम हो गई एट कांस्टेंट एंट्रोपी और वॉल्यूम, तब वो प्रोसेस हमारा स्पॉन्टेनियस है, नेचुरल है या इरिवर्सिबल है। ओके, ठीक है। अब हम अगर सिमिलर अकाउंट में इसमें DH लगाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, मतलब लॉजिकली देखा जाए, अगर हम एक लॉजिकल गैस करते हैं तो DH का देखा जाए तो होएगा वो S और V की जगह हो जाएगा P, इट शुड डिक्रीज, ठीक है। दिस वी शुड ऑब्टेन, दिस इज अगेन अनदर क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी एंड दिस बोथ आर इम्पॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेट गेट में बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस भी पूछेंगे कि वेदर दिस इज whether if du at constant s comma u is decreasing, so whether this is a process, this process is spontaneous or not. They are spontaneous. Generally हम conventionally entropy ही देखते हैं, but unconventional देखा जाए तो हम internal energy और enthalpy को देख कर भी बता सकते हैं कि हमारा जो process है वो spontaneous है या नहीं, ठीक है। अब एक बार derive करते हैं इसको। तो क्या लिखा था हमने, dh dq को हमने लिखा था dh माइनस वी डी पी ना, और के, तो ये हो जाएगा टी डी एस माइनस डी एच प्लस वी डी पी, ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। अब हम करेंगे, एच ही निकालना है हमें, एस को कांस्टेंट और प्रेशर को कांस्टेंट, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, माइनस डी एच इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, so dH is less than or equal to 0. So we are getting this criteria that dH at constant entropy and pressure should decrease for a spontaneous process, and this is a very important equation. ये याद होनी ही चाहिए आपको। और डिराइव तो बहुत इजीली कर रहे हैं हम, डिराइव हम केवल क्लॉजेस इनइक्वालिटी को लेकर कर रहे हैं जो हमारे पास शुरू से ही है प्रूव्ड, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द कन्वेंशनल इन एनर्जी के टर्म्स जो हमारे पास हैं, हम अनकन्वेंशनल एनर्जी टर्म्स में जाते हैं। तो कैसे आएगा, तो वापस उसी इक्वेशन को यूज़ करेंगे,
वही इक्वेशन है, उसी इक्वेशन को हम मॉडिफाई कर रहे हैं, मैथमेटिकली हम उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं बस, और कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। ये हमारे पास है। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक काम कर सकते हैं कि टी डी एस डी यू माइनस पी डी वी था ना ये, तो माइनस डी यू माइनस पी डी वी, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम पहली एक टर्म अपने कंडीशन रखते हैं कि वॉल्यूम जो है वो है कांस्टेंट, ठीक है। एक टर्म रखी है कि वॉल्यूम कांस्टेंट कर रहे हैं। ये हम क्यों कर रहे हैं ये आगे जाके बताएंगे, बट ये भी देखते हैं मैथमेटिकली क्या निकल के आता है इससे। सेकेंडली हम कर रहे हैं टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है। तो dt जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0। तो अभी देखिए जब प्रेशर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो पीडीवी की टर्म तो 0 होगी, ठीक है। बाकी बचा टीडीएस माइनस डी यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्योंकि हमने कहा है कि प्रोसेस जो है वो आइसोथर्मल है, तो सपोजिटली मैं यहाँ पर dt का कोई भी टर्म ऐड करता हूँ तो वो इस फैक्टर को चेंज नहीं करेगा क्योंकि dt 0 है। तो अगर मैं TDS के साथ SDT भी लिख देता हूँ तो ये टर्म तो 0 है क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। तो अगर मैं इसमें ऐड करता हूँ या नहीं करता हूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बट ऐड करने से मुझे एक फ़ायदा हो जाता है तो मैं उसको ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। अब ऐड करने से क्या हो रहा है कि अगर आप देखें इसको गौर से तो ये हो जाएगा DTS माइनस डी यू। और सिमिलरली हम इससे क्या निकाल सकते हैं, हम इससे निकाल सकते हैं कि डी ऑफ TS माइनस यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ओके। अब क्या करो, इसको रिवर्स करो, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा डी यू माइनस TS शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। नाउ लुक इनटू दिस u माइनस TS, ठीक है। हमें पता है कि हमारी जो इंटरनल एनर्जी है वो एक स्टेट फंक्शन है, हमारा जो एंट्रोपी है वो एक स्टेट फंक्शन है। तो ये हमें एक अनदर स्टेट फंक्शन दे रहा है जिसको हम कहते हैं a, ठीक है। और क्राइटेरिया क्या है कि दिस पर्टिकुलर स्टेट फंक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर और वॉल्यूम क्या था ना, शुड बी लेस देन 0। तो अगर टेम्परेचर और वॉल्यूम कांस्टेंट है तो एक नया हमारे पास स्टेट फंक्शन है जिसे हम कहते हैं हेल्महोल्ट्ज़, प्रोनाउंसिएशन मुझे आती नहीं है, ठीक है। हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी कहते हैं इसको। और अगर टेम्परेचर और वॉल्यूम कांस्टेंट रखने पे वो डिक्रीज कर रही है तो प्रोसेस हमारा स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया आ रहा है। हमने अपने बेसिक इक्वेशन में केवल टेम्परेचर और वॉल्यूम को कांस्टेंट किया और हमें एक न्यू स्टेट फंक्शन मिल रहा है जिसको कहते हैं इज u माइनस TS। और वो न्यू स्टेट फंक्शन जो है उसे एनर्जी ही है, हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी है। और वो टेम्परेचर और वॉल्यूम कांस्टेंट पे अगर वो डिक्रीज होती है तो हमारा प्रोसेस जो है वो हमारा हो जाएगा स्पॉन्टेनियस। हम क्या कर रहे हैं, हम एक्चुअली स्पॉन्टेनिटी देखना चाह रहे हैं कि क्या हमारे स्पॉन्टेनिटी के क्राइटेरियाज बनते हैं। अब देखिए एक तो हमने जब वॉल्यूम कांस्टेंट किया तब निकल सकता, तो सिमिलर अकाउंट में एक हमारे पास ऐसा स्टेट फंक्शन निकलेगा जब हम प्रेशर कांस्टेंट करेंगे, ठीक है। और उसे हम सभी जानते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। तो वो डिराइव करते हैं एक बार गिब्स फ्री एनर्जी को, ठीक है। उसको डिराइव करने के लिए भी हम अपनी मेजर इक्वेशन को यूज़ करेंगे, ठीक है। इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे। अब क्या करेंगे, वॉल्यूम की जगह हम इंथैल्पी के फॉर्म में जाएंगे, ठीक है। तो TDS था माइनस DH था और क्या था साथ में था माइनस VDP, ठीक है। अब पहला इक्वेशन हम कर रहे हैं, पहला कंडीशन पुट कर रहे हैं कि प्रेशर कांस्टेंट है और सेकंड इक्वेशन यूज़ करेंगे कि वही कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो प्रेशर कांस्टेंट है तो हो जाएगा हमारा TDS माइनस DH इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और चूंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो मैं यहाँ पर SDT भी ऐड कर सकता हूँ। अभी ये देखो तो ये हो जाएगा DTS माइनस DH ग्रेटर देन इक्वल टू 0 and we are obtaining what? We are obtaining D of TS minus H should be greater than or equal to 0। अभी देखो क्या बन के आ रहा है हमारे पास बन के आ रहा है कि D of H minus TS should be less than or equal to 0, ठीक है। तो अभी ये H भी एक स्टेट फंक्शन है,
एस भी एक स्टेट फंक्शन है, टेम्परेचर भी स्टेट फंक्शन है। तो व्हाट वी आर गेटिंग अ न्यू स्टेट फंक्शन जिसको हम डिनोट करते हैं जी से, और ये स्टेट फंक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर जो है इस लेस देन जीरो, स्पॉन्टेनिटी का प्रोसेस ये हमको ये बता रहा है। और इस स्टेट फंक्शन को हम कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी, और ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स जो है वो एंट्रोपी के अराउंड घूमनी चाहिए थी, उसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि एंट्रोपी ही हमारी क्राइटेरिया है स्पॉन्टेनिटी का। बट क्या हो रहा है कि एंट्रोपी को कैलकुलेट करना बोथ फॉर सिस्टम एंड सराउंडिंग हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, हम एक नए टर्म्स में जा रहे हैं जिसको हम कहते हैं DG, मतलब जिसको हम कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। और वहाँ से हमने एक नया स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया निकाला है कि अगर वो हमारा स्टेट फंक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो हमारा प्रोसेस जो है वो स्पॉन्टेनियस है। हालांकि गिब्स फ्री एनर्जी का सिग्निफिकेंस क्या है ये हमको बाद में पता चलेगा, ठीक है। ये इसकी एनर्जी की ही यूनिट है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये हमको क्या दिखाता है, ये हम बाद में देखेंगे। पर ये एक अच्छा क्राइटेरिया है स्पॉन्टेनिटी का। अभी अच्छा क्यों है इसको हम कंपेयर करके देखते हैं, ठीक है। ये अच्छा क्यों है, मतलब ऐसी खास बात क्या थी इस स्पॉन्टेनिटी के क्राइटेरिया में कि हम यही पढ़ते हैं, बाकी वाले जो हमने इतने स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरियास निकाल दिए वो हम पढ़ते नहीं हैं। क्या बात थी, तो देखिए सबसे पहले जो हमने निकाला वो था DS, ठीक है। एट कांस्टेंट क्या था, UV शुड बी ग्रेटर देन 0। DS एट कांस्टेंट U की जगह H लगा दो, V की जगह P लगा दो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एंट्रोपी बढ़नी चाहिए और कौन से क्राइटेरिया में बढ़नी चाहिए वो भी पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एनर्जी सभी डिक्रीज होती हैं, तो जब हमने S और V को कांस्टेंट किया था तो एनर्जी हो रही थी डिक्रीज, और जब एंथैल्पी की बात करोगे तो S के साथ P कांस्टेंट करना पड़ेगा तब वो हो जाएगी डिक्रीज। और हाँ, फिर हमारे पास थे दो अनकन्वेंशनल एनर्जी के टर्म्स जो कि थे टेम्परेचर वॉल्यूम कांस्टेंट करने पे 0 एंड DG जो थी टेम्परेचर और प्रेशर करने पर 0, मतलब लेस देन 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर आप ये सभी के सभी स्पॉन्टेनिटी के क्राइटेरियाज हैं, मतलब अगर कोई भी प्रोसेस के लिए सपोजिटली DS एट कांस्टेंट HP इज ग्रेटर देन 0 तो वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, और ये अगर हो रहा है तभी वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। बट अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो देखिए फर्स्ट टर्म में हमें इंटरनल एनर्जी को कांस्टेंट करना पड़ेगा, तो वो हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ है। मतलब एक तो हमें इंटरनल एनर्जी समझ में नहीं आती क्या है, तो इतना डेफिनेशन उसकी इतनी ज़्यादा है कि ट्रांसलेशन एनर्जी है, रोटेशनल एनर्जी है, वाइब्रेशनल एनर्जी है, और उसको कांस्टेंट कर दें तो बहुत डिफिकल्ट बात है। सिमिलरली एंथैल्पी को कांस्टेंट करना, प्रेशर तो फिर भी हम कांस्टेंट कर सकते हैं, वॉल्यूम करना भी डिफिकल्ट है बट उतना डिफिकल्ट नहीं है, कर सकते हैं। बट एंथैल्पी को कांस्टेंट करना मुश्किल है किसी प्रोसेस के लिए। फिर आप यहाँ पर आइए, यहाँ पर हमको एंट्रोपी को कांस्टेंट करना पड़ेगा, यहाँ पर भी एंट्रोपी को कांस्टेंट करना पड़ेगा। प्रेशर तो हम कर सकते हैं, वो हमारे लिए तो एक गुडविल जेस्चर है। अगर हम DA की बात करें हर्म्सवर्थ इक्वेशन में तो यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट तो हम कर सकते हैं, वॉल्यूम भी कर सकते हैं, बट डिफिकल्ट है वॉल्यूम को कांस्टेंट करना, पर ये कर सकते हैं। दिस इज़ मोर अप्रोचेबल देन द रेस्ट 4, ओके। अब आप DG पे आ जाइए तो ये तो गॉड है, टेम्परेचर और प्रेशर ही कांस्टेंट करना वो हम कर ही सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये क्राइटेरिया इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाकी सभी पे देखिए जो हमको कांस्टेंट करना है वो कांस्टेंट करना डिफिकल्ट हो जाएगा। यहाँ पर भी वॉल्यूम है थोड़ा फैक्टर, बट यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर है, और टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट करना हमारे लिए सबसे आसान है किसी भी रिएक्शन के लिए। तो अगर ये पर्टिकुलर एनर्जी टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट करने पे 0 आ रही है तो हमारा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, तो हम वहीं से निकाल सकते हैं। तो इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस है कि ये बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड है, ठीक है। टेम्परेचर प्रेशर को ही कांस्टेंट करना है, ठीक है। एक चीज़ ये, और सेकंड चीज़ एक चीज़ और देखना कि जब हमने G को डिफाइन किया, ठीक है, हमने कहा G इज इक्वल टू H माइनस TS। तो देखिए जब हमने इसको डिराइव किया तब हमने प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट किया था, ठीक है। तो वो क्यों कांस्टेंट किया था, क्योंकि हम एक स्पॉन्टेनिटी के क्राइटेरिया पे जा रहे थे, ठीक है। बट जब हम G की बात कर रहे हैं यहाँ पर अभी टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। अगर आप इसको फर्दर मैथमेटिक्स लगाना चाहते हो तो उसके बाद आप कंडीशंस लगानी पड़ेंगी। जैसे सपोजिटली अगर आप इसका डिफरेंशियल करते हो
तो ये होना चाहिए dH माइनस TdS माइनस SdT ऑल्सो। मतलब जब तक बोला ना जाए कि टेम्परेचर कांस्टेंट है डेल्टा जी इज दिस, पर जब बोल दिया जाए कि टेम्परेचर कांस्टेंट है तब डेल्टा जी इज दिस। और जनरली हम डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस TdS ही यूज़ करते हैं, बट ये गलत टर्म है। जब तक बोला ना जाए कि टेम्परेचर कांस्टेंट है हमें इसको भूलना नहीं है। अब आप बोलोगे कि डिराइव करते समय तो टेम्परेचर कांस्टेंट किया था, जब डिराइव कर रहे थे तब हम स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया डिफाइन कर रहे थे। तो क्या था वो कि डेल जी जो है टेम्परेचर और प्रेशर पे जीरो होना चाहिए, ये क्राइटेरिया डिफाइन कर रहे थे, तभी हमने टेम्परेचर प्रेशर को कांस्टेंट मान के चले था। बट जी के लिए तो अभी ये कांस्टेंट नहीं है। अगर आपको जी को सॉल्व करना है फिर आपको कंडीशंस देनी पड़ेंगी कि अब सपोजिटली टेम्परेचर कांस्टेंट है, फिर उसको आप नलीफाई करेंगे, ऐसे नलीफाई नहीं करना है। यही एक सही इक्वेशन है, केवल यहाँ तक लिखना गलत है। जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तब तक वहाँ तक आप नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना, बहुत गड़बड़ होती है इस पर। ओके, ये चीज़ होगी हमारी स्मॉलिटी की क्राइटेरिया हो गया डिफाइन। अब हम क्या करते हैं, हम मैक्सवेल इक्वेशंस पे जाते हैं। मैक्सवेल इक्वेशंस, ठीक है, और इससे हम मैक्सवेल इक्वेशन से हम जो है अपने फर्स्ट थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन ऑफ स्टेट और सेकंड थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन ऑफ स्टेट को डिराइव करेंगे। बहुत इजी है मैक्सवेल इक्वेशन को एक्चुअली में डिराइव करना। क्या करना है, देखिए हमारे पास है du TdS माइनस PdV। आई एम टॉकिंग ऑफ एक्सपेंशन वर्क ओनली, ठीक। एक्सपेंशन मतलब PV वर्क, कंप्रेशन भी हो सकता है, ठीक है। अब हमें पता है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि U इज़ अ फंक्शन ऑफ एंट्रोपी एंड वॉल्यूम, ठीक है। सो व्हाट वी गेट इज du इज del U by del S at constant volume ds plus del U by del V at constant entropy dV, ठीक है। अब अगर आप कंपेयर करो तो du by del S जो होगा वो T हो जाएगा और del U by del V हो जाएगा, वो हो जाएगा P माइनस P। और अब चीज़ पे आते हैं, हमें पता है कि U जो है वो एक स्टेट फंक्शन है। तो अगर तो ये स्टेट फंक्शन है तो ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल भी है। और एग्जैक्ट डिफरेंशियल के लिए क्या होता है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल के लिए इसका डबल डेरिवेटिव इक्वल हो जाएगा क्या, डेल यू, ठीक है, सॉरी, डेल स्क्वायर, ये आ जाएगा यू, तो इसको भी रहने दो, डेल एस, ठीक है। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द अदर, ठीक है। डेल वी की रिस्पेक्ट में हमको इसको डिफरेंशिएट करना होगा। सो दैट विल बी इक्वल टू डेल ऑफ डेल एस डेल यू बाय डेल वी, ठीक है। तो ये हमें डिफाइन हो रहा है, ठीक है। ये होना चाहिए हमारा क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो अभी यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट रखो, एंट्रोपी कांस्टेंट रखो, ठीक है। तो ये आ जाएगा डेल बाय डेल वी और डी यू बाई डी एस तो है हमारा T इज इक्वल टू डेल बाय डेल एस और डेल यू बाई डेल वी है हमारा माइनस P। और इसके साथ आ जाएगा हमारा, सॉरी, इसके साथ यहाँ S हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा V, ये हो जाएगा S और ये माइनस को बाहर ले लेते हैं V, ठीक है। तो ये हमारे पास टर्म निकली है, क्या निकली है हमारे पास टर्म, डेल T बाई डेल V एट कॉन्स्टेंट S इज इक्वल टू माइनस डेल P बाई डेल S कॉन्स्टेंट V। कैसे निकाला, du से निकाला। तो देखो एक बार इसको वापस, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है ये, ठीक है। माइनस डेल P बाई डेल S एट कॉन्स्टेंट V। तो ये हमारे पास एक मैक्सवेल इक्वेशन है। अब देखो सपोजिटली कोई आपसे कहता है कि आपको इस मैक्सवेल इक्वेशन को डिराइव करना है, तो हाउ विल यू प्रोसीड। पहले आपको देखना है कि कांस्टेंट क्या क्या है, ठीक है। यहाँ पर S और V कांस्टेंट है, इसलिए आपको वो चीज़ देखनी है, वो वाला टर्म इक्वेशन यूज़ करने जिसमें S और V आए, तो इसलिए du यूज़ करना पड़ेगा ताकि TdS और PdV आए।
और फिर आप बोलोगे कि डी यू जो है वो स्टेट फंक्शन है, उसका जो डबल डेरिवेटिव है वो इक्वल होना चाहिए, तो फिर ये क्राइटेरिया आपके पास आ जाएंगे। सिमिलरली अगर मैं डी एच से देखूं, क्योंकि 4 हमारे पास इक्वेशंस हैं, डी ए की भी एक इक्वेशन निकालते हैं अभी हम। डी एच की इक्वेशन देखो तो हो जाएगा डी एस प्लस वी डी पी होगा। ओके, तो इस केस में देखो एस और पी कांस्टेंट होगा, ठीक है, यहाँ पर एस और वी कांस्टेंट था, वहाँ एस और पी कांस्टेंट होगा। तो क्या है सिंपल क्राइटेरिया, ये वाली टर्म डेल टी बाय डेल पी इज इक्वल टू डेल वी बाय डेल एस। ये हो जाएगा कांस्टेंट एस पे और ये हो जाएगा कांस्टेंट पी पे, ठीक है। ये निकलेगा, कैसे निकलेगा, सिमिलरली आपको निकालना है। कैसे निकाल सकते हो कि h इज़ अ फंक्शन ऑफ s कॉमा p, ठीक है। आप कीजिए डी एच इज इक्वल टू डी एच इज इक्वल टू डेल एच बाय डेल एस एट कांस्टेंट p ds डेल एच बाय डेल पी एट कांस्टेंट एस डी पी, ठीक है। और फिर इसका डबल डेरिवेटिव ये एक्चुअली में हो जाएगा टी डी एस, ठीक है, और ये हो जाएगा वी। इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पी होगा, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस होगा, तो डेल टी बाय डेल पी और डेल वी बाय डेल एस, तो ये आ जाएगा। तो सिमिलरली आप इसका मैक्सवेल इक्वेशन इससे भी निकाल सकते हैं। तो ये फर्स्ट हो जाएगी मैक्सवेल इक्वेशन, दूसरी आ जाएगी मैक्सवेल इक्वेशन, और फिर आप तीसरी और फोर्थ कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ए हमें पता है ए क्या है, ए इज इक्वल टू यू माइनस टी एस, ठीक है। तो डी ए जो है वो हो जाएगा हमारे पास डी यू माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी, ठीक है। तो डी ए हो जाएगा हमारे पास, डी यू को अगर मैं लिखूं तो टी डी एस माइनस पी डी वी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी, ठीक है। तो यहाँ से क्या क्या चीज़ चली जाएगी, कुछ नहीं जा रहा है, टी डी एस ही जा रहा है बस। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी, ठीक है, डी ए। तो अगर आप इसको करोगे तो क्या आएगा, माइनस डेल पी बाय डेल टी एट कांस्टेंट, और ये आ जाएगा डेल एस बाय डेल वी। तो ये टी है और यहाँ पर वी है। तो ये एक टर्म निकलेगी आपकी जब आप डी ए से जाएंगे। सिमिलरली जब आप डी जी से जाएंगे तब आपके पास अनदर टर्म आएगी, ठीक है। वो टर्म क्या होगी एक बार देखते हैं। तो ये भी एक मैक्सवेल इक्वेशन है। अब देखिए, अगर सपोजली आपसे कोई कहता है कि ये वाली मैक्सवेल इक्वेशन को डिराइव कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट है, फिर आपको डी ए यूज़ करना है, क्योंकि डी ए के फॉर्मूले में ही वॉल्यूम और टेम्परेचर को फंक्शन मान गया है, मतलब वी ओ टी को फंक्शन माना गया है, और वी ओ टी यहाँ पर कांस्टेंट है। सिमिलरली जी से निकाल सकते हैं हम, 4 इक्वेशंस निकल रही हैं, चारों मैक्सवेल इक्वेशन चारों हमारे इस फॉर्मूले से निकल जाएगी, ठीक है। तो डी जी जो है वो हो जाएगा डी एच माइनस डी टी एस डी टी माइनस टी डी एस, ओके। और डी एच क्या है, डी एच हमारा है टी डी एस प्लस वी डी पी माइनस एस डी टी माइनस टी डी एस। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टी डी एस कट जाएगा, तो ये हो जाएगा वी डी पी माइनस टी डी एस। नहीं गलत हो गया, टी डी एस नहीं कटेगा ना, ये हो जाएगा टी डी एस माइनस एस डी टी। तो टी डी एस के साथ ये टी डी एस जाएगा ना, फिर तो हो जाएगा वी डी पी माइनस एस डी टी, ठीक है। अगर इसका हम मैक्सवेल इक्वेशन निकालें तो क्या है, डेल वी बाय डेल टी, ठीक है। और इसका निकालें माइनस डेल एस डेल पी
इसके साथ कांस्टेंट टेम्परेचर और इसके साथ जो कांस्टेंट है वो हो जाएगा प्रेशर। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये भी हम निकाल सकते हैं। प्रेशर और टेम्परेचर यहाँ पर कांस्टेंट है तो डी लेके जाना है। अब देखो ये जो मैक्सवेल इक्वेशंस है ये ये याद होनी चाहिए क्योंकि ये भी पूछे जाती हैं। इसका याद करने का बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जैसे आपने देखा होगा कि मैं बहुत मतलब इसको देख कर मैं कर रहा हूँ, बहुत कॉन्फिडेंट हो कि यही आंसर है। क्यों, आपको बताता हूँ। एक ट्रिक है पीछे। इसकी ट्रिक क्या है, जैसे हमें पता है कि, चलो लिख लेता हूँ ट्रिक ये है कि हमें पता है PV = RT होता है फॉर 1 मोल। तब यहाँ पर R की जगह ना S कर लीजिए। ठीक है, PV = ST करके चलिए, और बस क्या करना है, जब del P है तो एक बार T यहाँ पे आ जाएगा, तो del P, और जब T को यहाँ पर लेके आओगे, मतलब P को नीचे लेके आया, फिर यहाँ पर हो जाएगा S और V को नीचे लेके गए। अब कांस्टेंट क्या क्या है, बहुत आसान है। यहाँ पर कांस्टेंट होगा इसका डिनोमिनेटर वॉल्यूम, और यहाँ पर कांस्टेंट होगा इसका डिनोमिनेटर टेम्परेचर। ठीक है, अब हम del V का निकालते हैं, तो del V बाय del S करके देखते हैं। ठीक है, del V बाय del S = del T बाय del P। अब यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है और यहाँ पर है एंट्रोपी। ठीक है, इसका डिनोमिनेटर कांस्टेंट है और यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर कांस्टेंट है। सिमिलरली हम बाकी कैसे निकाल सकते हैं, निकालो। कौन सी वाली रहेगी है, P और S की रहेगी है, तो जाएगा del P बाय del S। ठीक है, del P बाय del S = del T बाय del V। तो ये यहाँ पर हो जाएगा V कांस्टेंट, यहाँ पर हो जाएगा S कांस्टेंट। और एक चीज़ ध्यान रखना कि जब P और S साथ में है, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में है, मतलब यहाँ पर ऐसे भी हो सकता है कि del S बाय del P हो, तब भी आपको क्या करना है, सपोजिटली del S del P आ रहा है या del P del S आ रहा है, अगर ये साथ में आ रहा है तब आपको नेगेटिव साइन लगाना है एक। ठीक है, केवल ये चीज़ याद रखना कि जब P और S साथ में आए तो नेगेटिव साइन लगाना है। तो यहाँ से भी हम डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, इसको सपोजिटली ये ऐसे होता है कि del S बाय del P निकालना है हमको, तो यहाँ पर माइनस लगा देना है एक। ठीक है, तो ये हो जाएगा del V बाय del T, और कांस्टेंट यहाँ पर एक तो हो जाएगा T और ये हो जाएगा P। ठीक है, तो ये हमारी दूसरी मैक्सवेल इक्वेशन है। ये भी एक मैक्सवेल इक्वेशन है, बस हमने उल्टी करी हुई है। ठीक है, यहाँ से निकाल सकते हैं आप। तो ये याद रखोगे तो शायद मैक्सवेल इक्वेशन नहीं भूलेंगी, और भूलनी नहीं चाहिए। और अगर आपको कोई मैथ बोलता है कि डिराइव करो, तो डेरिवेशन आपके सामने एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स के रूल लगते हैं इसमें। ठीक है, ओके, ठीक है, अभी तो हो गया ऑलमोस्ट। बस हमें, अच्छा हाँ, एक चीज़ और रह गई है कि हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन हमने बनाई थी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट और सेकंड इक्वेशन ऑफ स्टेट, तब हमने बोला था कि जब तक मैक्सवेल इक्वेशन नहीं आएंगे तब तक हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो एक बार देखते हैं उनको, क्या था वो, क्या थी वो, del U बाय del V एट कांस्टेंट टेम्परेचर था ना, और इसको हम बोल रहे थे कि दिस इज द इंटरनल प्रेशर, इफ यू रिमेंबर। तो इसके जो यूनिट्स हैं वो प्रेशर के थे। तो यहाँ पर आया था del T del P बाय del T एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, ये थी ना इक्वेशन जो हमने फर्स्ट थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन ऑफ स्टेट बोली थी। इसको डिराइव करते हैं एक बार, देखते हैं कि हम ये डिराइव कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो del U है तो du से शुरू करते हैं एक बार। तो हमारे पास है du = TdS माइनस PdV। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए del U बाय del V एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, तो क्या करो, सभी टर्म्स को del V से डिवाइड कर दो, कांस्टेंट टेम्परेचर कर दो, तो क्या आ जाएगा T del S बाय del V एट कांस्टेंट टेम्परेचर माइनस P। ठीक है, अब देखो, अब हमें इसको चेंज करना है। इसको चेंज करने के लिए मैक्सवेल इक्वेशन लगा देंगे। ठीक है, कैसे लगाएंगे, अब सपोजिटली आपको ये अपने एकेडमिया में प्रूफ करना है ना, तो पहले आप
ये जाएंगे कि सिंस वी नो फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन dq लिखेंगे, फिर dq से TDS में आएंगे, dw को वर्क फंक्शन लिखेंगे, फिर आप बोलेंगे कि जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट में हमको ये चाहिए तो डिवाइडेड ऑल द टर्म्स बाय वी गेट कांस्टेंट t, फिर आप यहाँ पर आएंगे, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आपको चाहिए ये इसको डिराइव करना है, ठीक है। इसके लिए आप मैक्सवेल इक्वेशन को डिराइव करेंगे, ठीक है। मैक्सवेल इक्वेशन डिराइव करके यहाँ पर मैक्सवेल इक्वेशंस को पुट करेंगे और फिर आपका स्टेटमेंट निकलेगा। सो इट विल बिकम एटलीस्ट अ 2 पेज एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो कैसे करना है इसको हमें पता है, अब ये ट्रिक मत लगा देना वहाँ पर PV इक्वल टेस्ट, ये आप एकेडमी में नहीं लगा सकते। अगर आप ये लगाएंगे तो दे विल कट योर मार्क्स फॉर दिस। तो यू हैव टू गो बाय द स्टैंडर्ड मेथड जो मैंने अभी बताया मैक्सवेल डेरिवेशन का, वही मेथड आपको यूज़ करना होगा, ठीक है। डेल एस बाय डेल वी है ना, तो है डेल एस बाय डेल वी और यहाँ पर हो जाएगा डेल पी बाय डेल टी हो जाएगा, फिर तो कांस्टेंट हो जाएगा यहाँ पर वॉल्यूम और यहाँ पर टेम्परेचर ही चाहिए था। तो भाई साहब हमारा तो डेरिवेशन हो गया, ये हो गया टी डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम माइनस पी। सो दिस इज व्हाट वी रिक्वायर्ड एंड दिस इज व्हाट वी आर ऑब्टेनिंग एंड वी हैड टू यूज द मैक्सवेल इक्वेशन। तो जब तक बहुत तुरंत ही हो गया। तो मैक्सवेल इक्वेशन को पहले आप डिराइव करेंगे, फिर आप ये लिखेंगे। अगर आप एकेडमी में इसको प्रूव करना चाहते हैं, अगर आप PV इक्वल टू ST लिख देंगे तो नंबर कट जाएंगे, वो नेगेटिव नंबर मिल जाएंगे, 5 नंबर की जगह -1 दे देगा वो, क्योंकि क्यों बेवकूफ़ी करने पर, ठीक है। अब सिमिलर अकाउंट में हम सेकंड इक्वेशन को भी डिराइव कर सकते हैं ना, कि नहीं, क्या था वो, TDS प्लस VDP। करके देखो इसको, क्या है, डेल एच बाई डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर था ना, डिवाइड करो प्रेशर से सबको, तो T प्लस V, ठीक है। इसके यूनिट जो है वो वॉल्यूम की यूनिट है। अब डेल एस बाई डेल पी को पुट करो, अब देखो कौन सी इक्वेशन यूज होगी, ठीक है। ये तो मैं ये लिख रहा हूँ, फिर यही होना चाहिए, माइनस आएगा क्योंकि S और P जो है वो साथ में है, ठीक है। तो ये हमारी सेकंड थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट है, बहुत सिंपल है इसको डिराइव करना। और अगर पूछा जाता है तो ऐसे नहीं डिराइव करना है, पूरा लिखना है। इसको समझ तो आ ही गई होगी कि कैसे प्रोसीड किया है। तो मैक्सवेल इक्वेशन डिराइव करनी है उस समय कि T और P, तो आप T और P कांस्टेंट है तो कौन सा यूज़ करेंगे, DG, ठीक है। DG यूज़ करेंगे ना, तो DG यूज़ करके आप मैक्सवेल इक्वेशन डिराइव कीजिए, फिर उसको पुट कर दीजिए, यू विल गेट नंबर्स फॉर दैट, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट बेसिकली ये था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में G के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, A के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।